It's going to be a do or die versus the mighty Indians at Dubai, which is going to be a massive, massive ask for the host Pakistan. You don't see any chances for this Pakistan team to make it to the semis. Big statement. So it's going to be it's a very big statement. If Pakistan has to win the ICC Champions Trophy, if Pakistan have to defend their crown, these two players have to step up. Middle order की मैं बात करूं, inexperienced बना वो middle order है. This middle. Moving on to the next team for the Champions Trophy 2025 squad discussion, it's the hosts. But unfortunately, we had to wait for a long time to take this recording because they are the last team to announce the squad, unfortunately. I don't know, I will ask the reason behind that. Being the host, we always expect the host nation to give it as early as possible. But it took a long time compared to the others and eventually announced the squad. I have Subhan with me, as always, all the way from Pakistan. Welcome to the show, Subhan. First of all, how does it feel to finally get the confirmation, hopefully touch wood, that you will be hosting the Champions Trophy? Yeah, Pritam bhai, first of all, thank you for having me. And finally, the squad is announced because we know that this is not a Champions Trophy. This is a construction trophy because the Qaddafi Stadium still not completed. I think officially not completed. But our government said in 8th February, the Qaddafi Stadium will be overall complete and the match will be start. But I think that देखें प्रीतम भाई वही बात है कि जब आपकी तैयारियां ना हो, जब आपको अपने स्क्वाड का पता ना हो, जब आप में जो है ना सिफारिशी प्लेयर्स हो, जब आपके पास जो है ना वो पर्चियां अलग अलग के प्लेयर्स जो है ना वो आ रहे हो, फिर आपको स्क्वाड अनाउंस करने में देरी लग जाती है. देखें नॉर्मली जो इंडियन ने अपना स्क्वाड अनाउंस किया था, जसप्रीत बुमराह की बेस पे वो थोड़ी सी रुके हुए थे. उन्होंने डेडलाइन को इस वजह से फॉलो नहीं किया था, लेकिन उन्होंने फिर भी जसप्रीत बुमराह को ऐड करके उनको पता था कि मतलब उनका जो सारा प्रोसीजर है वो इतना ज्यादा फास्ट है मॉडर्न डे क्रिकेट के हिसाब से कि उन्होंने अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया. लेकिन हमारे यहाँ तो सिस्टम ही अलग है ना. हमें तो पता होने के बाद भी जो ना हमें इस चीज के बारे में यकीन नहीं था कि हमारा स्क्वाड यही रहने वाला है. अब आप अगर स्क्वाड के बारे में नजर डालें तो स्क्वाड में जिस तरह आप सवाल करेंगे मैं उसके बाद जवाब दूंगा. लेकिन स्क्वाड में भी अगर आप देखें तो इतनी कोई बुरी चीजें जो है ना वो हमारे साथ इस दफा चैंपियंस ट्रॉफी में भी हो गई हैं. आपको याद होगा जब भी कोई टूर्नामेंट के लिए स्क्वाड अनाउंस होता है, हम यहीं पे बैठ के बात करते हैं आपके साथ और हमेशा से जो है ना वो अच्छाइयां बुराइयां जो भी होता है वो ऑनेस्टली जो है ना वो बयान कर देते हैं. सो आज भी जिस तरीके से आप पूछेंगे उस हिसाब से जो है ना वो आप लोगों को बताएंगे. बिल्कुल 100%. and आपको भी मालूम है, even I know that there will be a lot of questions that being asked, but you said the Gaddafi Stadium is not going to be ready because we can see there are different journalists giving different videos, different visuals, some saying that it's ready, Indian fans get ready, the Pakistan is ready, but some of them saying that it's not ready. So we don't know, but we will see what happens because it's just, if you'll see, less than 10 days away and you have the Champions Trophy which is going to be starting with New Zealand kick-starting versus Pakistan, and you don't have your stadium already ready so that the others can have a view of it. That's very, very embarrassing to say, but ये बात तो नहीं है कि वो लोग के पास पैसों की कमी थी. It's just that how they have built up, how they have planned the proceeding. We will have to wait and see how they host the Champions Trophy, to be honest. There's not going to be any captains meet as well, which is also an embarrassing thing to be saying. But moving into the squad, first of all, we'll come to the squad discussion in depth, to be honest, Subhan. But आपके हिसाब से ये squad जो आपने देखा, whatever has been announced, we'll come to the players that have been missing out, the new inclusions that have been taken place. But how much would you rate the squad out of 10 is what my first question is. प्रीतम भाई देखें, आपने जिस तरह स्क्वाड की बात की ना, हम जब भी डिस्कशन करते हैं अपने स्क्वाड के मुतालिक, जब भी हम बात कर रहे होते हैं, पाकिस्तान का स्क्वाड जो है ना वो अनाउंस हुआ है, पाकिस्तान का स्क्वाड जो है ना वो लेट अनाउंस हुआ है. क्या वजह थी पाकिस्तान का स्क्वाड जो है ना वो लेट अनाउंस हुआ है? ये आज तक किसी भी टूर्नामेंट से पहले किसी भी बंदे को नहीं पता चल पाया है. वो इस वजह से क्योंकि ये इनका आप देखें ना, कोई भी स्क्वाड अनाउंस होता है, खसूसन जो हमारी पाकिस्तान इंडिया की टीम्स है, किसी भी टूर्नामेंट के लिए उनका स्क्वाड अनाउंस होता है तो एक बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है. इंडिया का स्क्वाड अनाउंस हुआ, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, ठीक है ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने अनाउंस किया, सिलेक्टर्स बैठे हुए थे, कप्तान बैठा हुआ था, हर चीज जो है ना वो सामने के सामने सॉर्ट आउट हुई और हर चीज का जवाब दिया गया. यहाँ पर ऐसा हुआ कि शाम को अभी लोग चाय पी रहे हैं और अचानक ही ढाबे पे बैठ के मैसेज आता है, पीसीबी ने ट्वीट कर दिया कि भाई स्क्वाड अनाउंस हो गया है, ठीक है ना. मतलब सुभान अल्लाह, वो चाय भी नीचे गिर गई थी लोगों के मुंह से, मतलब जब उन्होंने ये स्क्वाड देख लिया था. मतलब मैं ये समझता हूँ कि यार जिस हिसाब से इन्होंने अपनी नालायकियों का मुजाहरा किया है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि देखें दुनिया में बाकी टीम्स भी हैं, वो भी खेल रही हैं, दुनिया में बाकी बोर्ड्स भी हैं, उन्होंने भी जो है ना वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी है, उन्होंने भी जो है ना वो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में जो है ना वो पार्टिसिपेट करना है. सबने एक टाइम के हिसाब से अपने स्क्वाड को अनाउंस कर दिया. ये स्क्वाड अनाउंस कर रहे हैं, स्क्वाड अनाउंस जो है ना एक तो डेडलाइन के बाद कर रहे हैं,
बिना बताए कर रहे हैं, बिना प्रेस कॉन्फ्रेंस के कर रहे हैं और सिफारिशी पर्चियों में जो है ना वो डाल रहे हैं। अब आप आ जाए, अब जरा स्क्वाड हम एक एक करके देखते हैं, आपको भी पता लगेगा और सारे व्यूअर्स को भी पता लगेगा। बाबर आजम, ठीक है ना, वनडे क्रिकेट का मेरे हिसाब से पाकिस्तान के पास जो इस वक्त सबसे बड़ा प्लेयर है वो बाबर आजम ही है, ठीक है ना, जो सबको पता है कि वो इन डेप्थ जो है ना वो चीजों को लेकर चलता है। फखर जमान की बात करूं मैं, फखर जमान रिलायबल प्लेयर है, अच्छा प्लेयर है, जिस पर जो आप जो है ना वो डिपेंड हो सकते हो कि यार ये आपकी टीम के जो 10 प्लेयर हैं, अगर तो उनको ज्यादा जो है ना वो मार पड़ जाती है तो ये अकेला खिलाड़ी है जो कि आपको उस सिचुएशन से निकाल सकता है। हमने बहुत बारी देखा है, हमने वो चिन्ना स्वामी में भी देखा है, हमने जो है ना वो क्या कहते हैं न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका में भी देखा है, वाली सीरीज भी हमने देखी है। सो आई थिंक दैट वहां पे फखर जमान ने बड़ा अच्छा रोल प्ले किया। दुबई इंटरनेशनल वाला भी मैच देखा था, वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो सेमीफाइनल हुआ था। उसके बाद कामरान गुलाम, इसको कहते हैं मिनी बाबर आजम, ठीक है, ये अपने आप को बाबर आजम बनाने की कोशिश करते हैं जबकि ये ऐसे बिल्कुल नहीं है। थोड़ा सा if you can add a little bit of Kamran Gulam and Steve Smith kind of a wait on leave moments. यार मतलब आप मुझे एक चीज के बारे में जवाब दे दो, कहाँ स्टीव स्मिथ, कहाँ जो है ना वो कामरान गुलाम, मतलब कोई कोई आपने मुझसे सवाल किया ना, लिटरली मुझे हंसी आई, जिस तरह आप हंस रहे हो ना उसी तरह मुझे भी हंसी आई है, लेकिन आई कंट्रोल माई सेल्फ बिकॉज हम लाइव बैठे तो उस हिसाब से बात जो है ना वो नहीं कर सकते। लेकिन बात यह है कि यार मतलब कामरान गुलाम वो प्लेयर जिसको आपने जो है ना वो इतना बड़ा बना दिया कि आपने कह दिया जी मिनी बाबर आजम है। ओ भाई बाबर आजम तो क्या ये भाई, अभी तो गली क्रिकेट में भी अगर ये खेलेंगे तो वहां पे भी एक आध ड्राइवे मार के, वो ऐसा होता है ना गली में हम क्रिकेट खेल रहे होते हैं, दीवार पे बॉल लगे हमने कैच पकड़ लेना तो आउट हो जाता है वो बंदा, तो कामरान गुलाम की सेम सिचुएशन जो ना वो इस हिसाब वाली है। उनको पता ही hardly has any ODI experience. He does not have any ODI experience. No, absolutely. वही जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ कि एक्सपीरियंस की बेस पे, क्योंकि आप ये चीज चेक करो कि भाई उसके पास वो एबिलिटी अभी मौजूद नहीं है कि बड़े टूर्नामेंट में आप इतने यंग प्लेयर को उतार दो। सो मेरे हिसाब से ये चीज जो है ना वो गलत है। फिर अगर मैं साउथ शकील की बात करूं, देखें एक तो वनडे क्रिकेट का तजर्बा जो है ना वो 2023 के वर्ल्ड कप के बाद था नहीं, ठीक है ना, अगर जानता है लड़का तो मेरे हिसाब से जो है ना वो ठीक है, चले आपने स्क्वाड में ऐड कर लिया, ठीक है। आप ये देखें तैयब ताहिर जो आजकल क्रिकेट खेल रहा है ना, वो पुराने जमाने में जो क्रिकेट नहीं खेलते थे, जहीर अब्बास खेलते थे, और उससे पहले चले जाओ तो क्या कहते हैं सर विवन रिचर्ड खेलते थे, सर विवन रिचर्ड तो फिर तेज में खेलते थे, उससे पहले डॉन ब्रैडमैन रोकी जाओ टुक 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 टुक, तो ये तैयब ताहिर का वो वाला हिसाब है, ठीक है ना। तो आपने टुक टुक को अपनी जो है ना वो गेम में ऐड कर लिया, ठीक है ना। अब हल्का सा मैच फंसेगा क्योंकि मिडिल ऑर्डर आपका फिर लैग कर गया। प्रीतम भाई आपको याद होगा कि हम जब भी बैठ के बात करते हैं हम अपने मिडिल ऑर्डर को ही ज्यादा रोना रो रहे होते हैं पाकिस्तान का, ठीक है ना, तो मिडिल ऑर्डर फिर आपका रोना डाल रहा है, ठीक है। उसके बाद कोई कौन, राना फहीम अशरफ, यार मतलब कि मैं अपना सर पकड़ के बैठ गया कसम से। Exactly. This is the two players. I'm sorry to interrupt, but these are the two players I want to ask you. From where did Pakistan once again bring back Fahim Ashraf and Khuzdil Shah? Out of the blue, they are back into the side and they have hardly any average. I just recently heard Wasim Akram saying about Fahim Ashraf. In batting, he has an average of 9. In bowling, he has an average of 100. And you're picking him in an ICC tournament. प्रीतम भाई देखें, मोदी साहब ने अगर अपने पोते की सिफारिश करनी हो ना तो वो जाके डायरेक्ट इंटरनेशनल टीम में नहीं करेंगे, वो जाके किसी ग्राउंड के कोच को कह देंगे कि भाई मेरे पोते को पहले क्रिकेट सिखाओ, उसके बाद जो है ना वो क्रिकेट में लेके आना। यहाँ जो हमारा हिसाब किताब चल रहा है ना, डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर तक जो है ना वो लोगों के कॉन्टैक्ट है कि प्राइम मिनिस्टर फोन कर देता है, हाँ मोहसिन नकवी क्या हाल है, ठीक हो, ये फहीम अशरफ को रात को ऐड कर देना टीम में वरना तुम्हारी सुबह खैर नहीं है। ये वाला सीन यहाँ पे होता है, ठीक है ना। तो ये आप ये देखो, ये पर्ची सिफारिशी जो इतनी बड़ी आई है, अच्छा यार मतलब आप ये चेक करो कि आपने कोई सीरीज नहीं खेलनी, आपने कोई टूर्नामेंट नहीं खेलना, आपने कुछ नहीं खेलना, जब आईसीसी का टूर्नामेंट हो आपकी वापसी हो जाती है। अबे यार ना कोई परफॉर्मेंस, ना लेना ना देना, ना डोमेस्टिक का तजर्बा, ना कोई चक्कर, क्या कहते हैं वनडे क्रिकेट में ऐसे ही आप, और इसको कहा जाता है हार्दिक पांड्या बेन स्टोक्स। भाई हार्दिक पांड्या यार मतलब वो हार्दिक पांड्या है, वो फहीम अशरफ के पापा भी जो है ना वो हार्दिक पांड्या के बराबर नहीं होंगे जो हार्दिक पांड्या का अपनी पोजीशन है, ठीक है ना। और ये जो बेन स्टोक कहा जाता है वो फिर आपको पता है तीनों फॉर्मेट की बात है, वो तो फिर वो लंबी बात चली जाती है। तो आप देखो कि, और खुशदेव शाह की बात करूं अगर मैं, एक डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस, आप यकीन करें ये डोमेस्टिक क्रिकेट जो कि लीग्स हैं, इन लीग्स ने हमारी एशियन क्रिकेट्स का इतना बेड़ा गर्क कर दिया है कि यार हम इसकी परफॉर्मेंस पे जो ना वो उठाने लगे। So do you think Khuzdil Shah has been picked for the ongoing Bangladesh Premier League? Absolutely, BPL, absolutely. आपको याद होगा 2022 में एक एशिया कप हुआ था, दुबई में ही हुआ था, पाकिस्तान थी हमारे ग्रुप में, इंडिया थी और एक और टीम थी, याद करें जरा कौन सी टीम थी वो, याद करें, T20 का जो एशिया कप हुआ था जिसमें कुछ शाह ने परफॉर्मेंस दी थी। I think it was Afghanistan. नहीं अफगानिस्तान नहीं थी, कोई और थी, कोई और टीम थी। 2022 में हुआ था वो एशिया कप। हाँ अफगानिस्तान भी थी और एक और भी थी, अफगानिस्तान भी थी, याद आ गया मुझे, एक और भी थी, वो छोटी टीम। I think it was UAE, but I might not be sure. या एब्सोल्युटली UAE, तो वो टीम थी, ठीक है ना। तो आप ये चेक करें कि उस दिन की परफॉर्मेंस इस आदमी ने दी हुई है और ये आदमी अचानक ही उठ के जो ना वो आपकी टीम में आ जाता है।
very surprising for me and all over Very, fans. very surprised. Very shocking, I must say. And that's where I will come back to you. Khusdil Shah and Fahim Ashraf can be the difference in this ICC tournament for Pakistan because they are the host and they have picked a squad not based on experience, but as you said a while ago, based on the big names they're going with. Fahim Ashraf, Khusdil Shah did not play for Pakistan the last year. And all of a sudden, they come into the squad where you're playing at your own den. You have gone with just one frontline spinner, and that is Abrar Ahmed, who's a red ball bowler. Where is Usama Mir? प्रीतम भाई, आपने ना मुझे एक मिनट के लिए शॉक में डाल दिया कि एक स्क्वाड अनाउंस हुआ है, एक होस्ट नेशन का स्क्वाड अनाउंस हुआ है, उसमें कोई लेग स्पिनर ही नहीं है. Exactly. Very shocking. I had really pre-planned, I'll be very honest, I had pre-planned that when this squad announced, one of my most key players to watch out for from this Pakistan side will be Shadab Khan. And I don't see him in the side. I don't see Usama Mir in the side. What kind of a squad is this? You do not have a frontline leg spinner in the side. You have two. You have not gone with either of them. Sir, must eligible in the team for the Champions Trophy. Must eligible. Shadab Khan. मैं नेम अनाउंस बता भी दिया. Shadab Khan must eligible because के उसके बाद वो एक्सपीरियंस है, आपके पास खेला हुआ भी है. Exactly. यार जैसा भी है, फुल टॉस कराता है, जो भी है, आपको ऑल राउंडर परफॉर्मेंस दे सकता है वो. ठीक है ना? He can score runs with the bat as well. Absolutely. वही तो मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई आप देखो कि वो आपको बैट से परफॉर्मेंस दे सकता है, वो बॉल से आपको दे सकता है. ठीक है ना? आपको वो एक्सपीरियंस भी चाहिए होता है, लेकिन नहीं, इन्होंने सारे नए लड़के उठा के डाल दिए. फिर अगर आप आगे चलो, सलमान अली आगा. यार सलमान अली आगा की अगर आप जहां तक मैं बात करूं, देखिए इससे बड़ी भी सिफारिशी पर्ची कोई भी नहीं है. ये भी बहुत बड़ी सिफारिश है, बहुत बड़ी पर्ची पे अंदर आया हुआ है. अनकरीब ये बर्बाद हो जाएंगे, अनकरीब इन लोगों ने चले जाना है. बिकॉज के पाकिस्तान टीम बहुत इन्होंने यार बहुत नाजायज कर दिया, मछली मंडी की दुकान लगा दी है. फिर अगर मैं रिजवान की बात करूं तो रिजवान साहब की अपनी जो ओडीआई में परफॉर्मेंसेस है ना, वो भी कोई बहुत जो है ना वो बताने के काबिल नहीं है, क्योंकि हर आई जाई गेंद को जो है ना ये लेग पे लपा मारने की कोशिश करते हैं. यार सामने बुमराह होगा, सामने शामी होगा, वो आपको इतनी आसानी से बख्शेंगे नहीं भाई. ठीक है ना? वो पागल. But if you talk about, I'm being very honest, if you talk about these experienced players, you have Babar Azam, you have Mohammad Rizwan with an average of 52 for Mohammad Rizwan, and you have Babar Azam with an average of 57 in 2024 for these two players. They are the pillars of this Pakistan side, I must tell you, because if Pakistan has to win the ICC Champions Trophy, if Pakistan have to defend their crown, these two players have to step up. Babar Azam and Mohammad Rizwan को पाकिस्तान के लिए हर मैच में परफॉर्म करना है विद द बैट. एब्सोल्युटली. देखें प्रीतम भाई, यहाँ पर हमारे पास जो है ना वो बैकअप है, यशस्वी जायसवाल नहीं बैठा हुआ. यहाँ पे हमारे पास रोहित शर्मा नहीं है. यहाँ पे आपके पास उस्मान खान है. हाँ, यहाँ पर हमारे पास उस्मान खान है. ठीक है ना? जिसको हमने किसी और मुल्क से उठाया हुआ है, उसकी मिन्नतें करी हैं, भाई तू आजा, उसको भी टूर्नामेंट में ले आते हैं, वो पीएसएल में एक सेंचुरी मार देगा, उसको हमने जो है ना वो डैडी बना लिया है, उसको हम कभी भी जो है ना वो अपनी टीम में ले आते हैं. यार मतलब कि यार सिलेक्शन का देखें प्रीतम भाई, बात बहुत लंबी हो जाएगी. मैं क्विकली ऑन सिर्फ पूरे स्क्वाड का नेम बता के एक डिस्कशन मार देते हैं. ठीक है ना? स्पिनर आपने जो ना अबरार अहमद को रख लिया. आप मुझे सिर्फ एक बात बता दें, स्पिनिंग डिपार्टमेंट में आपको लगता है कि इस प्लेयर की जगह बन रही है? 110% नहीं बन रही, क्योंकि जो एशियन कंडीशंस हैं, अपने हिसाब से आप इनको जितना मर्जी बेहतर बनाने की कोशिश कर लो, जितना मर्जी आप इनको फास्ट ट्रैक पे डालने की कोशिश कर लो, वक्त एक आता है कि भाईजान स्पिनिंग कंडीशंस यहाँ पे काम आती ही आती हैं. आपके स्पिन बॉलर्स आते ही आते हैं. यार आप इंडिया ले लो, आप पाकिस्तान ले लो, आप श्रीलंका ले लो, आप बांग्लादेश ले लो. भाई मैं कितनी एशियन कंडीशंस गिरवाऊं, यहाँ क्या वो कंडीशन का हिसाब किताब भी कुछ स्पिन के हिसाब से रहता है, और इस टीम में स्पिनर जो है ना वो ऐड नहीं है. मिडिल ऑर्डर की मैं बात करूं, इनएक्सपीरियंस जो है ना वो मिडिल ऑर्डर है, जिस मिडिल ऑर्डर को बिल्कुल तमीज नहीं है कैसे खेला जाए, किस तरीके से प्रेशर को संभाला जाए. बॉलिंग की बात करूं, नसीम शाह की फिटनेस नहीं है. हारिस रऊफ को आपने 2023 के वर्ल्ड कप में देख ही लिया था, वो किस तरीके की परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं. शाहीन अफरीदी अपने आप को बड़ा समझने लगे, उनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है. मोहम्मद हसनैन वो भी एक लप्पा फास्ट बॉलर है. ठीक है? Exactly. But if you talk about if you talk about the three names, big names, you said Naseem Shah coming back from injury, Haris Rauf still has to play because he is that raw pace. Shaheen Shah Afridi is the only brightness I can see in this side because he has he's gained his pace. He's bowling at 1 kick 40 clicks now. The only positive thing in the Pakistan bowling attack is Shaheen Shah Afridi मेरे हिसाब से. But Mohammad Hasnain ये कहाँ से आया? Because I'm very very shocked to see no Mohammad Wasim Jr. He's a very very top class death bowler, but no Mohammad Wasim Jr. But you've gone for Fahim Ashraf. Does Mohammad Hasnain deserve a spot in the side? मोहम्मद वसीम जूनियर भी हो सकते थे, आमिर जमाल भी हो सकते थे, इरफान खान नियाज़ी भी हो सकते थे. या एब्सोल्युटली ये वो प्लेयर्स थे जो पाकिस्तान के पास टैलेंट ऑलरेडी मौजूद है, जिसको हम इनहैंस करके जो है ना वो बड़ा बना सकते हैं, दुनिया में अपना नाम कमा सकते हैं. या जिसकी पर्ची पहले लग गई उसकी पर्ची पहले लगी. ओवरऑल अगर मैं स्क्वाड की बात करूं, आप यकीन करें मैं बहुत बड़ी बात कहने लगूं, न्यूजीलैंड रख लें, इंग्लैंड रख लें, ऑस्ट्रेलिया रख लें, इंडिया रख लें, ये चार टीमें, हमारा स्क्वाड इन चार टीमों के आसपास भी नहीं भटक रहा है. दिस इज अ बिग स्टेटमेंट. हमारा स्क्वाड इन चार टीमों के आसपास भी नहीं.
very big statement. I am going to hear this at the end of the show from you when I ask you the predictions. But one player that has been a major blow for Pakistan is no Saim Ayub. His injury has, I think, made a huge blunder for Pakistan, especially at the top of the order. एब्सोल्युटली बिकॉज यार एक बात बताऊं, ये बहुत अच्छा हुआ कि साइम को इंजरी हो गई, वो इस वजह से क्योंकि इन्होंने उसको भी बर्बाद कर देना था। अगर वो लड़का वो बच्चा ना चलता चैंपियंस ट्रॉफी में तो इन्होंने कहा था ओ जी इतना इस पे इन्वेस्ट कर दिया, चलो उसको निकाल के बाहर फेंको, चलो जी। वो अच्छा हो गया कि भाई उसको इंजरी हो गई, वो थोड़ा टाइम लेके आएगा, उसको चीजों का पता लगेगा, थोड़ा एक्सपीरियंस लेगा, फिर अगले साल वर्ल्ड कप के लिए जाएगा। सो एकदम ही उसको प्राइम पकड़ी थी उस बंदे ने, एकदम उसको ट्रॉफी में उठा के डाल देना, वो भी चीज जो है ना वो एक प्लेयर के लिए मेंटली तौर पर बहुत ज्यादा जो है ना वो चैलेंजिंग होती है। सो ये चीज भी थोड़ी सी अच्छी हो गई। लेकिन मैं आपको यार कंफर्म बता सकता हूँ कि ये पाकिस्तान का जो ये स्क्वाड है ना, इस पाकिस्तान के स्क्वाड को या तो कोई करिश्मा हो गया या कोई मिरेकल हो गया तो पाकिस्तान टीम आगे जा सकती है, वरना मुझे कुछ चांसेस नजर आ नहीं रहे अभी तक कि ये टीम जो है ना हमारी सर्वाइव कर सकती है। Okay, so you don't see any chances for this Pakistan team to make it to the semis. We'll come to the discussion as the show progresses. But quickly, let's move on to the 5 players to watch out for. According to me, I've gone with Babar Azam, Mohammad Rizwan, Salman Ali Agha, because he's the second, I'm saying the frontline spinner apart from Abrar Ahmed. So he has to play a key role out here. Abrar Ahmed and Shaheen Shah Afridi are the remaining 2 players, according to me. Who are your 5 players to watch out for? Sir, according to this squad, I think Babar Azam, Fakhar Zaman, Mohammad Rizwan, Shaheen Afridi, and Saud Shakil. Saud Shakil, okay. So you've gone Yes. with 4 batters and 1 seamer. No spinners, no Salman Ali Agha, no Abrar Ahmed. That's very shocking. Yeah. But that is what you've gone with. But the 3 games you're playing, you're starting with hosting the first game. That's absolutely right. Being the defending champions. First game at Karachi versus New Zealand. Then you're playing the big one at Dubai, India versus Pakistan. And ending up at Rawalpindi facing Bangladesh. 3 tricky fixtures. But the first game is very important. I asked this when I did the preview for New Zealand as well. You have to kickstart the tournament with a win. How important is it to face New Zealand in front of your home crowd at Karachi? Is it important to win? Sir, this is a very crucial game for us because New Zealand, this New Zealand team, it's so much good because हमने देखा है मिचेल स्टैटनर की कैप्टनसी में जो है ना वो इंडिया को इतने सालों बाद व्हाइट वॉश कर दिया, तो भाई वो इंडिया को इंडिया में कर दिया जाके, तो हमारे साथ तो कुछ भी कर सकते हैं ये लोग, ठीक है ना। सो मेरे हिसाब से उनके पास हर एक चीज है, ठीक है। उनका अगर बैटिंग यूनिट देखा जाए, वहाँ केन विलियमसन भी हैं, वहाँ डेवन कॉनवे भी हैं, वहाँ पे डैरल मिचेल भी हैं, वहाँ पे जो है ना वो ग्लैन फिलिप्स भी आपको जो है ना वो आई थिंक देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। उनके पास वो सारा कॉम्बिनेशन है, ठीक है। फिर अगर आप बॉलिंग में बात करें, एडम मिलने हैं, टिम साउथी नहीं है, रॉकी टिम साउथी हैज रिटायर्ड, टिम साउथी रिटायर हो चुके हैं। वो अभी तक मेरे माइंड में ना वो न्यूजीलैंड वही वाली बॉलिंग घूमती है, टिम साउथी, ट्रेंट बोल्ट, absolutely, yeah, they are very dangerous. But yes, you said the first game is going to be very crucial. Then if you're coming back from losing the first game, then it's going to be a do or die versus the mighty Indians at Dubai, which is going to be a massive ask for the host Pakistan. But now let's move on to the predicted playing 11. This is where I'm going to be very excited to see what your take is. But here is my predicted playing 11. I've gone with for Pakistan. No Saim Ayub, so I'm gone with my 2 openers, which is Fakhar Zaman and Babar Azam are my 2 openers. Kamran Ghulam at 3, Saud Shakil at 4, Mohammad Rizwan at 5, Salman Ali Agha at number 6, Khuzdil Shah at number 7, Shaheen Afridi, Naseem Shah, Haris Rauf and Abrar Ahmed are the 3 spacers and 1 spinner. Your thoughts, your playing 11, please. Yeah, my playing 11 is Babar Azam, Fakhar Zaman, Kamran Ghulam, Saud Shakil, in 5th Mohammad Rizwan, in 6th Salman Ali Agha, 7th Abrar Ahmed, and 8th Haris Rauf, Naseem Shah, Shaheen Shah, and I think that Pakistan team will go with Fahim Ashraf. Fahim Ashraf as your bowling all-rounder, like I've gone with Khuzdil Shah as my spinning all-rounder. Your thoughts with that opening pair, Babar Azam to open? Do you think that's the right decision? Yeah, this is a very, 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 very destructive sign for us because I think that Babar Azam, the actual number is number 3. So I think that this actual number is so much. मेरे हिसाब से उनका I think जो उनका नंबर है नंबर 3, वो इस हिसाब से नंबर है कि वो हमेशा से उस नंबर पे परफॉर्मेंस देते हैं। मुझे नहीं लगता कि आपको अपने सबसे बड़े प्लेयर को उठा के छेड़ना चाहिए, उसके नंबर को खराब करना चाहिए। तो आई थिंक दैट वो चीज हमारे लिए बहुत क्रूशियल रहने वाली है, क्योंकि देखें जब आपका कोई बड़ा प्लेयर होता है तो सामने वाली ऑपोजिशन की तैयारी यही होती है कि भाई स्लिप लगाओ, बॉल हल्का सा सीन मिल रहा है, इसको आते साथ ही जो ना ये छेड़ने की कोशिश करेगा, आते साथ इसको आउट करो। सेम लाइक प्लान बाबर के लिए, विराट के लिए, जोए रूट के लिए, स्टीव स्मिथ के लिए, केन विलियमसन के लिए, सेम लाइक उन सबके लिए जो ना वो प्लान्स बनाए जाते हैं।
सो आई थिंक दैट अगर बाबर ओपन करता है तो फिर वो ओपनिंग वाले प्लान्स जो है ना वो बनाए जाएंगे कि भाई इसको जल्द अज जल्द निकालना है, क्योंकि अगर ये खड़ा हुआ तो फिर जो है ना वो टीमों को जो है ना वो मुश्किलात में डाल सकता है. सो मुझे ऐसा लगता है न्यूजीलैंड का भी सेम जो है ना वो यही प्लान रहेगा कि बाबर आजम को किसी तरीके से जो है ना वो शिकार बनाए सबसे पहले अपना, क्योंकि फिर वो जैसे बाबर आउट होता है तो फिर आपको पता है कि आना जाना लग जाता है, लाइन है तो फिर उसकी लगने लगी जाती है. Absolutely, that is going to be very key. But this is what you have gone with your predicted playing 11. You seem not to be confident about Pakistan being the host and with the squad. Absolutely rightly so. But this is predictions time now, Shubhan. 4 teams on Group A, which is India, Pakistan, New Zealand, and Bangladesh, are the 4 teams. Who are your 2 teams that make it to the semis from this group? India definitely, and I'm worried. I'm so much worried, and always worried. बिकॉज जब भी हम यहाँ पे बैठ के पाकिस्तान की बात करते हैं, सो लास्ट टाइम भी आपको याद होगा कि जब वो हमने 2024 या तो वहां पे भी मैंने प्रेडिक्शन कुछ बहुत अच्छी नहीं की थी पाकिस्तान के मुतालिक, सो सेम वाला हिसाब हो गया था. तो अभी भी अगर देखा जाए आई थिंक इंडिया जीतना चाहिए. न्यूजीलैंड वाला मैच जीत जाएंगे पाकिस्तान, एंड अगर दूसरे ग्रुप से देखा जाए तो वहां से फिर आप ऑस्ट्रेलिया डेफिनेटली, एंड आई थिंक दैट South Africa. So Australia, South Africa from Group B, and India, Pakistan from Group A? Yeah, absolutely. Okay, so India, Pakistan from Group A is your predictions. You're still going with your country. Thank you so much. Really good to see that. Thank you so much, Shubhan. Thank you to all the viewers for watching this video. Do you agree with the statements Shubhan has given? Because he's given a lot of bold statements, I must tell you. Thank you for that. The Champions Trophy is less than 10 days away. Sit back and enjoy. We'll be there as well for its previews. Don't forget to subscribe to Fifth Umpire. Press the bell icon as well. Thank you so much, and bye-bye. Thank you.